हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। केसेस फॉर द ग्रोथ ऑफ रिलीजन, देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर। इन इंडिया हैज अ नंबर ऑफ फैक्टर हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ रिलीजन. The first year, realism is made its appearance as a reaction against the effort of the nation government to be impose a particular ideology, language, or culture pattern on the all and the group. Thus, the state of the South has restricted its imposition of the Hindi as an official language because they feared this would be the lead to be dominance of the North. Similarly, in Assam NT, as a foreigner is the movement was launched by the Assamese is the preserving there is the Oven culture, and next year continually neglect of the area of the religion by the ruling party and concentration of the administrative and the political power has given rise to the demand for the decentralization of the authorities and fortification of the legal state. On the occasionally some sons of the soil and theory has been to put forth to be promote the interest of the neglected group or area of the state. And third point here, the desire of the various unit of the India federal system is to maintain there is subculture, religions and the great degrees of the self-government has promoted religions and given rise to be demand for the great autonomy. The fourth point here, the desire of realism either to the capture power has also lead to the rise of the realism. It is known as that is a political party like DMK, AIADMK, Alkaline Dal and Telugu Desam, Sum and some Gana Prasad, etc. has encouraged the realism is a capture of power. And next point here, the interaction between the force of the moralization of and the mass participation has also is contribute to the growth of realism in India. There is the most important here, the moralizations and mass participation has there increase of realism in India, as the country is still away from the realizing the goal of a nation state. The various group has failed to be identify their group interest with the national interest, another feeling of realism and parasited. The next year, 6 point, the growing awareness among the people of backward area that they are began discriminated against has also promoted feeling of realism. The local political leaders have fully exploited his factor and tried to feed the people with the idea and that the central government has deliberately tried to maintain regional imbalance by neglecting social and economic development of certain area. There is the most important here. टॉपिक जो आया है हमारे समक्ष वो है क्षेत्रवाद की वृद्धि के कारण। देखिए, क्षेत्रवाद की वृद्धि के क्या कारण हो सकते हैं? आखिर क्षेत्रवाद जो है खत्म क्यों नहीं हो रहा है? हमारा भारत एक है, हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है क्षेत्रवाद को वृद्धि इतना अधिक हुआ है। तो इसका कारण क्या है? क्या ये तो नहीं है कहीं अंग्रेज का जो नीति है वो यहाँ के लोग भी अपना रहे हैं, जो बड़े बड़े नेता लोग हैं वो भी अपना रहे हैं? क्योंकि अंग्रेज का भी यही विचारधारा था कि जो है पार्टीशन करो और राज्य करो की जो नीति उन्होंने अपनाया था, यानी फूट डालो राज्य करने की नीति जो उनकी थी, आज देखा जाए तो आज पॉलिटिकल पार्टी भी इन्हीं जो है सिद्धांतों पे आगे बढ़ रही है। तभी तो धर्म पे, क्षेत्रवाद पे जो है हमेशा दंगा फसाद होता रहता है और इलेक्शन में जो है अपने उल्लू लोग सीधा करते रहते हैं। भारत में क्षेत्रवाद को बढ़ाने में अनेक कारणों का योगदान हो सकता है। सबसे पहले तो बात यही आती है कि सबसे पहले क्षेत्रवाद राष्ट्रीय सरकार द्वारा सभी लोगों के समूहों पर एक विशेष विचारधारा, भाषा और संस्कृति जो है प्रतिमान थोपने के विरुद्ध प्रतिक्रियाओं के रूप में दिखाई दिया है। यानी सबसे पहली बात तो यही आया है कि विचारधारा भाषा के ऊपर जो है संस्कृति प्रतिमानों को सौंपा गया है। अंत दक्षिण के राज्य में सरकारी भाषा के रूप में हिंदी थोपने का विरोध भी किया गया था, क्योंकि उनको डर था कि उसे उत्तर तथा प्रभुता स्थापित हो जाएगा। इसी प्रकार असम में अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए असम के लोगों ने जो है विदेशों के विरुद्ध जो है आंदोलन शुरू कर दिया था।
यानी दूसरे शासक दलों द्वारा किसी एक इलाके अथवा क्षेत्र के निरंतर अवहेलना और प्रशासनिक तथा राजनीतिक शक्तियों के एक जगह केंद्रित होने से सत्ता का जो विकेंद्रीकरण होता है तथा एक भाषीय राज्य को दो भागों में बांटने की जो मांग उठती है, कई बार जो है भूमि पुत्रों ने अपेक्षित समूह और राज्य के इलाकों के हितों में वृद्धि के लिए अनेक मांगों एवं सिद्धांतों को प्रस्तुत भी किया गया है। तो इसमें देखा जाए तो दो राय नहीं है। कहते हैं क्षेत्रवाद जो है हमारे अपने लोग ही कर रहे हैं। कहते हैं अगर किसी भी क्षेत्र का विभाजन किया जाता है तो वहाँ के लोग जो है इसके खिलाफ हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि हम एक हैं और यहाँ पर चाहे भाषा कोई भी हो, कहते हैं एकता में ही जो है काफ़ी शक्ति होती है और ये किसी भी देश के लिए सबसे ज़रूरी होती है। बेशकली कहते हैं क्षेत्र अलग होता है, प्रांत अलग होते हैं, लेकिन हम तो हैं भारत के वासी ही है ना, तो ये सबसे बड़ी बात आती है। तीसरी बात जो यहाँ पर आता है उठ के वो आता है भारतीय संघीय व्यवस्था के विभिन्न इकाइयों को अपने एवं संस्कृति क्षेत्र को बनाए रखने अथवा स्वयं शासन की अधिक मात्रा की इच्छा ने जो है क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया है, अधिक स्वायत्तता की मांग को भी उभारा है। इसका मतलब साफ ये हो जाता है कि संस्कृति क्षेत्र, देखिए कोई भी व्यक्ति अगर किसी संस्कृति क्षेत्र में रहते हैं तो उनका विचारधारा ये होता है कि वो उसी इलाके के ही रहने वाले हैं। जैसे आपने देखा भी होगा कि कोई क्षेत्र में अगर मान लीजिए कोई राज्य है, उसमें आप देखिएगा कि एक क्षेत्र जो होता है बिल्कुल साफ सुथरा होता है, रोड बिल्कुल ही चकाचक होते हैं, लेकिन उसी क्षेत्र के अगर कोई अलग जो होता है वहाँ के वार्ड नंबर होता है तो उसका देखिएगा जो हालत है मारा होता है। आखिर ऐसा जो है भेदभाव क्यों होता है? तो ऐसा ही जो यहाँ पर भी देखने को मिलता है, क्षेत्रवाद में भी देखने को मिलता है कि होते तो एक राष्ट्र के हैं, लेकिन इनके जो होते हैं अपने लिए रवैया जो होता है बदला हुआ होता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश के लिए। चौथी बात जो आती है वो क्षेत्र जो है चौथी क्षेत्रीय अभिव्यक्त प्रतिष्ठा की सत्ता पर कब्जा करने की इच्छा ने भी क्षेत्रवाद को उदित किया है। जैसे कि आपको पता है, ये मैंने बताया भी था कि कुछ व्यक्ति का जो मंशा ये होती है कि वो अपना जो है पूरा सरकार बना ले, तो उसका क्या होता है कि दूसरे क्षेत्र पे उन्होंने बिल्कुल ध्यान देना बंद कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हैदराबाद को जो है दो भागों में बांट दिया गया, एक तेलंगाना और एक हैदराबाद में कन्वर्ट हुआ। उसी तरह बिहार में भी देखोगे कि वहाँ एक झारखंड में कन्वर्ट हो गया, एक बिहार में कन्वर्ट हो गया। तो इससे क्या होता है कि वहाँ दो राज्य अगर बन जाते हैं तो वहाँ पर जो है दो व्यक्ति अच्छे से जो है प्रशासन कर सकते हैं, और ये वहाँ देखने को मिलता है जहाँ पर भाईचारा की भावना होती है। मान लीजिए दो भाई हैं, दोनों ही राजनीतिक पार्टी में संलग्न थे, उनके पिता जो थे उसी पार्टियों में से थे, तो उनका यही विचारधारा होता है कि दोनों के दोनों जो है क्षेत्र पर अपना राज्य करें। तो वो क्या करता है, देश के ही राज्य को ही बंटवारा कर देते हैं और अपने अपने प्रांत के जो है मुख्यमंत्री बन जाते हैं अपने जो है। तो ये सारी चीज़ें देखने के मिल जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि सत्ता पर कब्जा करने की इच्छा ने भी जो है क्षेत्रवाद को जो है काफ़ी उदित किया है। ये अच्छी तरह ज्ञात है कि डीएमके जो है एआईएडीएमके, अकाली दल जो है तेलुगु देश, असम गण परिषद इत्यादि राजनीतिक दलों ने सत्ता पर कब्जा करने के लिए क्षेत्रवाद को सदैव ही प्रोत्साहित किया है। पश्चिमी बात अगर हम देखें तो कहते हैं आधुनिकीकरण की ताकतों और जनसाधारण की सहभागिता के बीच अंतक्रियाओं ने भी भारत में क्षेत्रवाद को बढ़ाने में काफ़ी योगदान दिया है, क्योंकि अभी देश राष्ट्र क्षेत्र के लक्ष्य को साकार कर पाने में दूर है। क्योंकि जो हमारा लक्ष्य था, ठीक है, विकसित राष्ट्र बनने का, शायद ये सपना ही रहेगा। क्योंकि कहते हैं जब तक हमारे देश में क्षेत्रवाद, ठीक है, ये दंगे फसाद खत्म नहीं होंगे, जब तक गरीबी खत्म नहीं होगी, तब तक कहाँ से जो है हम लोग विकसित राष्ट्र बन सकते हैं, संभवतः ही नहीं है। और कहते हैं यहाँ पर जो नेताओं की भी विचारधारा होती है वो अलग अलग होती है। सभी नेता जो है व्यक्तिगत विचारधारा को सोचते हैं, लेकिन त्रिपाठी सेंटर ये बात सदैव कहता है कि कभी भी जो कोई बड़े अफसर होते हैं या मंत्री होते हैं वो कभी निजी नहीं होते हैं। उनका फैसला कभी भी निजी नहीं होना चाहिए, उनका सार्वजनिक फैसला होना चाहिए, और सार्वजनिक ही होना चाहिए क्योंकि वो एक का नहीं है, पूरे देश का है, पूरे राज्य के होते हैं। तो ये बात चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, उनको ये जो है बातें देश हित में सदैव लेने के लिए जो है जरूरी फैसला होता है। इसी बात को यहाँ बढ़ावा देने के कारण जो है ये सारी जो है समस्याएं उत्पन्न होती है। विभिन्न समूह अपने सामूहिक हित के राष्ट्रीय हितों के साथ जोड़ पाने में असफल रहे हैं, इसलिए क्षेत्रवाद अभी
एक प्रमुख समस्या बनता जा रहा है और ये बहुत बड़ी विडंबना है। और कहते हैं ये भारत में जो है अपना पैठ बना चुकी है। आपने देखा ही होगा जैसे इलेक्शन शुरू होते हैं वैसे ही दंगा फसाद हर क्षेत्र में स्टार्ट हो जाता है। कोई छोटी बात होती नहीं है कि पूरा जो है रेल को फूंकने लग जाते हैं, लोग घर जलाने लग जाते हैं। तो ये सांप्रदायिक दंगा फसाद करके हम जो है अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं। हमें सदैव ही देश के हित में ही सोचने का विचार रखना चाहिए। अंत में पिछड़े क्षेत्रों के लोगों में जो बढ़ती जागरूकता के कारण उनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा है ने क्षेत्रवाद को काफी बढ़ावा दिया है। स्थानीय राजनीतिक नेताओं ने इस कारक को अपने तरह से प्रयोग करना भी सीख लिया है। आज राजनीतिक नेता जो है इसको अपने तरह से प्रयोग कर रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं और सीट को जो है जीत रहे हैं। लोगों में यह भावना भरने का सदैव प्रयास किया है कि केंद्रीय सरकार कुछ इलाकों में सामाजिक और आर्थिक विकास की अवहेलना करके जानबूझकर क्षेत्रीय असंतुलन बनाए रखने का प्रयास कर रही है। ये आपने देखा भी होगा कोरोना वायरस में जो है गैस सिलेंडर के लिए जो है दिल्ली सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट से याचना किया था कि हमारे साथ जो है ये भेदभाव किया जा रहा है, दिल्ली के लोगों को जो है ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा है। तो ये सारी जो है कहते हैं क्षेत्रवाद की भावनाओं ने ही विकास किया है। कहते हैं कि दिल्ली में सारे सिलेंडर ऐसे के ऐसे धरे पड़े रह गए, लेकिन दूसरे क्षेत्र में जो है लोग मरते चले गए। तो ये क्या कारण हो सकता है? लोगों को कहते हैं ना कि इस बात को समझ होनी चाहिए कि क्षेत्रवाद नहीं लेना चाहिए, हमें देश लेना चाहिए। हर नागरिक को जो है वही सुविधा मिलना चाहिए जो दूसरे नागरिक को मिल रहा है। ठीक है, कहीं पानी लोग गंदे पी रहे हैं, कहीं पानी जो है फालतू में बहाई जा रही है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत विडंबना है। कहते हैं हमारा देश एक है, लेकिन बहुत विचारधाराओं ने, लोगों की गलत सोचों ने ये बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया है। तो इसमें दोस्तों आप लोगों की ज़रूरत है जहाँ पर आप लोग जो हो अच्छे महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हो, क्योंकि आज आप युवा हो, आने वाला समय में एक नेता भी बनोगे। तो इन सब बातों पर ध्यान रख के ही जो है सही राजनीति करने में आप अग्रसर